Ignited Minds Tutorials, the renowned online learning platform, has recently released a comprehensive video series on the intriguing subject of heritage management for Class 10 History. These educational videos aim to enlighten students about the importance of preserving and managing our rich cultural heritage. In this series, students will embark on a captivating journey through time, exploring the diverse aspects of heritage management. They will learn about the significance of heritage sites, the challenges faced in their preservation, and the techniques employed to safeguard these invaluable treasures. The videos cover a wide range of topics related to heritage management, including the conservation of historic monuments, the role of archaeology in preserving our past, and the importance of community involvement in safeguarding our cultural legacy. Engaging visuals, interactive quizzes, and expert explanations ensure that students grasp the concepts effectively. By delving into these lessons, students will develop an understanding of the importance of heritage management and fostering a sense of identity and pride within their community. They will also discover the economic and social benefits associated with preserving and promoting heritage sites. Whether you aspire to become an archaeologist, historian, or simply want to deepen your knowledge of our rich past, this series is a valuable resource for Class 10 History students. Join Ignited Minds Tutorials on this enlightening journey as we unravel the mysteries of heritage management and ignite your minds with the wonders of our cultural heritage. Okay, बच्चा बड़ी will start with heritage management. Heritage management मतलब होता क्या है? आपके जितने भी historical places हैं या आपके जितने भी historical artifacts हैं, जो आपके historical monuments हैं, ठीक है, जो coins हैं, इनका protection, ठीक है. So जितने भी आपके historical species हैं जिनको preserve करके रखा गया है museums वगैरह में, उनका preservation इसको अपन बोलते हैं heritage management. That is known as heritage management. और ये अपने आप में एक क्योंकि ये अगर हम नहीं प्रिजर्व करेंगे व्हाट विल हैपन ऑब्वियसली वी विल लूज देम एंड इफ वी लूज देम देन वी विल आल्सो लूज द टूरिस्ट हु आर कमिंग टू विजिट एंड गेन नॉलेज फ्रॉम देम. ठीक है. ओके, so these are the things that we are going to study. So sources of history, their conservation and preservation. तो आपका भाई साहब एक है oral sources. Oral sources मतलब जो दादा परदादा नाना नानियों से हमको मिलता है. मतलब जैसे अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद पढ़ लिख ना पाते हों लेकिन जिनको हनुमान चालीसा आता है. दैट इज बेसिकली ओरल सोर्स का ट्रेंड है. वो चला आ रहा है ना. तो सुंदरकांड का पांड कोई सब कर ले रहा है तो ये उन्होंने सुना है, बचपन से सुना है, इसी से उनको याद हो गया है. ठीक है. तो दीज आर बेसिकली ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. ठीक है. ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है ऐसा जो हमारा परंपरागत चला आ रहा है. लिटरेचर विच इज नॉट रिटन, जरूरी नहीं है कि रिटन फॉर्म में हो, ठीक है, बट इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ. ठीक है. तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो पास आउट हो रहा है, हालांकि उसको प्रॉपर्ली लिखा नहीं गया है, but it is passing from one generation to the other generation is known as an oral source. Collecting and compiling of folk songs, folk tales, etc. तो folk songs या folk tales का compilation, ठीक है. Classification, analyzing and interpreting the compiled material. Classifying मतलब किस इसमें आ रहा है, किस दौर का है ये, इसमें क्या कंटेंट है, ये सारी चीजें भाई साहब इसमें आती है. ठीक है. Publishing the results of respective research और इसको publish करना. Necessary training and knowledge, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी इसका भाई साहब होना चाहिए. ओरल सोर्सेज, सोशल साइकोलॉजी, माइथोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स, लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट एंड आर्टिकल्स. इसमें आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी जाकर आप ओरल सोर्सेज का प्रॉपर मूल्यांकन कर सकते हैं. इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट. नेसेसरी ट्रेनिंग एंड नॉलेज फॉर ओरल सोर्सेज. ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को प्रॉपरली एग्जामिन करने के लिए जो नेसेसरी ट्रेनिंग और नॉलेज आपको होनी चाहिए वो ये होगी.
डन हो गया? जल्दी जल्दी जल्दी। तो ओरल सोर्सेस को ठीक से एग्जामिन करने के लिए जो पर्याप्त मात्रा में आपको नेसेसरी ट्रेनिंग और नॉलेज होनी चाहिए, वो इन सारी चीजों पे होनी चाहिए, ठीक है। रिटन सोर्सेस आपके क्या क्या हो गया भाई साहब? तो रिटन सोर्सेस में आपका कलेक्टिंग कॉइन्स, कॉपर प्लेट्स विद इंस्क्रिप्शंस ऑन देम, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड डायरीज, हिस्टोरिकल बुक्स, ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा, ये सब भाई साहब आपके रिटन सोर्सेस हैं। पुराने ताल पत्तों पे लिखी गई चीजें, ठीक है, पुराने चीजों पे, जो आपके रॉक्स पे लिखी गई चीजें, ये सारी चीजें हैं भाई साहब, ये रिटन सोर्सेस हैं। तो कलेक्टिंग कॉइन्स, कॉइन्स में लिखी गई चीजें, कॉपर प्लेट्स विद इंस्क्रिप्शन, जैसे कॉपर प्लेट्स होते हैं उसमें आपने इंस्क्रिप्शन किया हुआ है, मतलब वहां के टाइम पे लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हमने हमारे पास हैं, पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड डायरीज, जो अभी आपने देखा जैसे बहुत बड़े बड़े ट्रैवलर्स हुआ करते थे और वो अपनी डायरीज मेंटेन करते थे, तो ये डायरीज में हिस्टोरिकल कलेक्शन, हिस्टोरिकल बुक्स, जो बुक्स हैं, ओल्ड बुक्स, बहुत पुरातन बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखे गए, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस में नहीं, जो एक्चुअली हाथ से लिखे गए हैं उनको हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं, ठीक है। पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, ये सारे तमाम चीजें जो हैं वो हिस्ट्री को बिलोंग करते हैं, ये बेसिकली, और इनका प्रिजर्वेशन करना बहुत जरूरी है, वी नीड टू प्रिजर्व देम, ओके। कंप्लीटिंग नेसेसरी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, तो बहुत तरीके से इनको प्रिजर्व करना है, हर चीज का एक लाइफ होता है, ठीक है, अगर हमने उसको भाई साहब मेंटेन नहीं किया तो वो चला जाएगा, तो इसको बहुत हाई मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, पुरातन काल से है, पता नहीं कितने सालों पहले की चीज है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको प्रॉपर फिजिकल और केमिकल मेथड्स देखने पड़ेंगे। कंप्लीटिंग नेसेसरी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस ऑफ क्लीनिंग फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो इनको प्रॉपर से क्लीन करना, इनको प्रॉपर से रखना, ठीक है, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। असर्टिंग द हिस्टोरिकल वैल्यू, क्या हो गया? असर्टिंग द हिस्टोरिकल वैल्यू, अभी हिस्टोरिकल वैल्यू मतलब जो हमने इकट्ठा किया, चाहे वो कॉइन हो, चाहे मैन्युस्क्रिप्ट हो, चाहे भाई साहब कोई इंस्क्रिप्शन हो, अभी इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है, किस समय का है ये, उसमें क्या लिखा हुआ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है, ठीक है, इसको कहते हैं हम असर्टिंग द हिस्टोरिकल वैल्यू। एग्जिबिटिंग, एग्जिबिटिंग मतलब लोगों को दिखाना, मतलब आप म्यूजियम वगैरह में जब इसको रख देते हैं तो यू आर एग्जिबिटिंग, you are putting it as a showpiece for people to come and explore the history, ठीक है। पब्लिशिंग एडिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसर्च रिपोर्ट्स, तो पब्लिश करना ये एडिटेड डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च रिपोर्ट्स को। नेसेसरी ट्रेनिंग एंड नॉलेज, स्क्रिप्ट्स लाइक आपको भाई साहब इन सब स्क्रिप्ट्स में बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ब्राह्मी, मोदी, पर्सियन एंड देयर डेवलपमेंट, ठीक है, ज्यादा करके इन लैंग्वेजेस में आपकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिशंस, लिटरेचर एंड कल्चर, डायनेस्टीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक्सेट्रा ऑफ पास्ट सोसाइटीज, इन सब चीजों में आपका भाई साहब अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिशंस, क्योंकि आप हिस्ट्री के बारे में जब लिख रहे हैं तो उल्ट सुल्ट नहीं लिख सकते, उस टाइम पे लोग कैसे थे, क्या लाइफस्टाइल था, इसका प्रॉपर नॉलेज होना। ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिशंस, लिटरेचर एंड कल्चर क्या था, ठीक है, डायनेस्टीज क्या थी, उस टाइम पे किसका राज था, कैसे लोग थे, कैसे राजा महाराजा हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स क्या क्या थे, पास्ट सोसाइटीज क्या क्या थी, ठीक है। स्कूल्स एंड स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग, स्क्रप्चरल आर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ देयर डेवलपमेंट, तो क्या क्या स्कूल्स थे और क्या क्या उनके स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग थे, स्क्रप्चरल आर्ट एंड द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ पेपर, इंक एंड कलर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस स्टोन्स एंड मेटल्स यूज फॉर इंस्क्रिप्शंस, तो आपने जो भी स्टोन्स और मेटल्स यूज किए हैं वो क्या क्या है। इक्विपमेंट एंड केमिकल्स यूज्ड इन वेरियस प्रोसेसेस ऑफ क्लीनिंग, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, तो आपने कौन कौन से केमिकल्स को यूज किया है, ठीक है, फॉर क्लीनिंग, उनको क्लीन करने के लिए, कंजर्व करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि जब तक आप इन सोर्सेस को ठीक से नहीं रखेंगे तब तक आप हिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव एन आइडिया अबाउट हिस्ट्री। अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशंस इन म्यूजियम्स, गैलरीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स, मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, अभी हम बात करेंगे भाई साहब मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जो हमको कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस ये सब मिलते हैं उनके बारे में, ठीक है। कलेक्टिंग आर्टिफैक्ट्स, क्लासिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल डेट एंड टाइप एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस, तो हमारे ये आर्टिफैक्ट्स हैं इनका कलेक्शन और प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस, ठीक है।
Okay, collecting artifacts, classifying them according to their historical date and time, and preparing indexes. तो ये artifacts को collect करना, ठीक है, उनको भाई साहब historical date and type से prepare करना indexes. Completing necessary mechanical and chemical processes of cleaning. तो हर एक कॉइन जो आप कलेक्ट कर रहे हैं या स्क्रिप्चर जो आप कलेक्ट कर रहे हैं उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए प्रॉपर क्लीनिंग प्रोसेस होता है, ठीक है. पता चला क्लीन करने का और ऐसा एसिड डाल दिया कि पूरा मटेरियल क्लीन हो गया, तो दिस इज नॉट द वे, ठीक है. आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि भाई साहब वो किस चीज से बना है और किस चीज से वाकई में हम उसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है. अरेंजिंग एग्जीबिशंस ऑफ सिलेक्टेड आर्टिफैक्ट्स और देयर रेप्लिकास, राइटिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च आर्टिकल्स. तो आपका राइट करना, पब्लिश करना रिसर्च आर्टिकल्स इनको लेकर, क्लासिफाइंग फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस, एग्जिबिटिंग, ठीक है. नेसेसरी ट्रेनिंग एंड नॉलेज अगर आपका होना चाहिए, इसमें क्या क्या होना चाहिए? आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड थियरी, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशंस. आर्कियोलॉजिकल मेथड मतलब जब आप जमीन के नीचे से किसी चीज को निकालते हैं, बड़े टेक्निकल तरीके से उसको निकालना पड़ेगा. जैसे समझ लो कोई जेसीबी आपने लगा दिया, उसको वैसा वैसा नहीं कर सकते आप. बहुत सावधानी से उन चीजों को निकालना पड़ता है, पहली बात तो ये. और निकालने के बाद उसको प्रिजर्व करने के लिए भी अलग नॉलेज की जरूरत है. अगर आप कहीं पे जमीन की खुदाई कर रहे हैं वहां पे बिल्डिंग बनाने के लिए, और कहीं पे अगर जमीन की खुदाई कर रहे हैं वहां से पुरातत्व की चीजों को निकालने के लिए, हिस्टोरिकल चीजों को निकालने के लिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा. यू हैव टू बी सुपर केयरफुल अबाउट द सेकेंड वन, ठीक है. सो आर्कियोलॉजिकल मेथड बोलते हैं हम इसको. जिसको प्रॉपर आर्कियोलॉजी का मेथड का ज्ञान हो वही इसको कर सकता है. आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड थियरी, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशंस. तो हिस्ट्री का भी ज्ञान होना चाहिए क्योंकि देखो आपको मालूम होना चाहिए ना कि इस टाइम पे कौन से महाराजा थे, तो जरूर उनके नाम का कॉइन मिलेगा या उनकी लिखन शैली में कोई हमको डायरी मिलेगी या डॉक्यूमेंट मिलेगा, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड, ये लिखते रहिए. रीजनल सोर्सेस ऑफ मटेरियल्स लाइक, regional sources of materials like stones, minerals, metals and clay used in the production of artifacts and their chemical properties. तो ये ज्ञान भी मतलब आपको थोड़ा बहुत साइंस का, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा साइंस का नॉलेज भी होना चाहिए. जो कॉइन आपको मिला है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, किस चीज का, किस एलिमेंट का बना हुआ है. क्योंकि जब आप साफ सफाई करेंगे तो जिस एसिड को आप यूज करेंगे वो उसको बर्बाद ना कर दे, इसीलिए आपको मेटल्स का ज्ञान भी जरूरी है. रीजनल सोर्सेस ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, क्या सा स्टोन है, मिनरल क्या है, मेटल्स क्या है, एंड व्हाट टाइप ऑफ क्ले हैज बीन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स. ये जो आर्टिफैक्ट्स का प्रोडक्शन हुआ है ये किस टाइप का क्ले यूज हुआ है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ताकि इनको हम प्रिजर्व करके रख सके. Regional sources of materials like stones, minerals, metals, and clay used in the production of artifacts and their chemical properties. Equipment and chemicals necessary for cleaning. तो क्या क्या chemicals चाहिए, क्या क्या equipment चाहिए आपके cleaning processes में, ठीक है. इसका नॉलेज भी आपको बहुत जरूरी है. आपने भाई साहब कोई ऐसी एसिड यूज कर दी कि वो जो था वही खराब हो गया, ठीक है, तो आप इसका नॉलेज बहुत जरूरी है, ठीक है. ओके. स्कूल्स एंड स्टाइल्स ऑफ आर्ट एंड देयर डेवलपमेंट. देखो इंडिया में भी और दूसरे कंट्रीज में भी अलग अलग डेवलपमेंट हुए थे, अलग अलग स्कूल्स, मतलब एक स्कूल चलता था आर्ट का, उस स्कूल के तहत ये आर्ट्स बने, ठीक है. जैसे अगर आप देखोगे हमारे मंदिरों के निर्माण एक शैली में है, छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनस है उसका निर्माण एक अलग शैली में है, सब अलग अलग स्कूल ऑफ आर्ट में है, ठीक है. सो स्कूल्स ऑफ आर्ट एंड द स्टाइल्स ऑफ आर्ट एंड द डेवलपमेंट, इसका नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि आप किसी आकृति को देखकर समझ जाएं कि ये किस स्कूल ऑफ आर्ट को